Good morning, students. In our today's class, we will study chapter number 11, constructions. This chapter I will teach you in notebook 10 class so that you can see all the arcs properly. Whichever question I am teaching you in notebook, that same you have to do with me only. Then only you will be able to understand properly 10 class. Otherwise, you will forget that from where to cut the arc. Okay. So please, whenever I am teaching you question, you should do with me only. Take your all the necessary articles regarding construction like scale, sharp pencil, compass, eraser and all the things you should keep with you. When I will teach you, that time you should draw yourself. Okay. I am doing this chapter in notebook so that you can see arcs properly. On board I think it will not be visible to you. Okay. So let us start this chapter. One more thing I want to say you. This chapter's PDF, written work also we are sending now only. Earlier we haven't sent it. Okay, so you have to finish this chapter in notebook also. After this chapter, your written work will be finished in mathematics. Okay, all the 15 chapters we have completed in our notebook after completion of this chapter. Okay, so let us start this chapter. Chapter number 11, constructions. Our first topic is to divide a line segment internally as per the given ratio. So we have two methods to draw this construction. So we'll solve it by first method first of all. So look at example number 1, which is divide a line segment of length 8 cm in the ratio 3:2. आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई जिसकी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर. यू हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो 3:2. सो इन फर्स्ट मेथड व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. जो भी लेंथ आपको दी हुई है उस लेंथ की आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी. Now next step is we need to make equal angles at vertex A as well as at vertex B. आपको दोनों ही वर्टिसेस पे इक्वल एंगल बनाने हैं. वो दोनों इक्वल एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए. बोथ दी एंगल्स मस्ट बी एक्यूट. ओके, इट्स अप टू यू. आप 45 डिग्री बना रहे हैं या फिर आप 30 डिग्री बना रहे हैं, आपकी मर्जी है. बट आई सजेस्ट यू दैट यू शुड मेक an angle of 60 degree because to make 60 degree angle is the easiest angle with the help of compass. Okay, so we'll make an angle of 60 degree at vertex A as well as at vertex B. So open your compass, taking A as center, draw an arc. Okay, now keep your compass pointer at this point. With the same radius, cut another arc. In this way, you will get an angle of 60 degree. आपको इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. Join now. Okay, so let it be AX. In the same way, we'll make an angle of 60 degree at vertex B. But here we will have to make angle downside. Okay, taking B as center, cut an arc. Now with the same radius, keep your compass pointer at this arc and cut arc to get an angle of 60 degree. Now join this vertex B with this arc. So this angle is also 60 degree. Label it as Y. Now 10th class, remember one point which we have studied in our previous classes. Can we say that AX and BY are parallel lines? Can we say both these angles are equal? So these angles are forming alternate interior angles. Angle A is equal to angle B equals to 60 degree. But these angles are alternate interior angles, and we know that alternate interior angles are equal only when lines are parallel. That's why we have framed equal angles at A and B. अपनों ने वर्टेक्स A और B पे इक्वल एंगल्स इसीलिए बनाए हैं to get AX and BY parallel to each other. Is that clear to you all? आपको इक्वल एंगल्स बनाने हैं. इट डजेंट मैटर कि आप 60 डिग्री बना रहे हैं या 30 डिग्री बना रहे हैं. मैंने कहा मुझे लगा कि 60 डिग्री ईजी है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू मेक 60 डिग्री एंगल. ओके, नाउ मूविंग अहेड, रेशो इज गिवन
3:2. You have to divide this line segment in the ratio 3:2. Now again take compass and open it. बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है कंपास और बहुत कम भी नहीं खोलना है कंपास को, एक नॉर्मल साइज़ का, एक स्टैंडर्ड साइज़ का आप कंपास खोलिए. अब आप क्या करेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर, कट एन आर्क. यू हैव टू कट 3 आर्क्स फ्रॉम वर्टेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्क विल कट फ्रॉम वर्टेक्स ए, फर्स्ट आर्क. अब देखिए जहाँ ये आर्क कटी है यहाँ से विल कट सेकेंड आर्क और फिर यहाँ से हम कटेंगे थर्ड आर्क. ओके, label these arcs as A1, A2, A3. Got it? कंपास पॉइंटर ए पे रखा, आपने स्टैंडर्ड साइज का कंपास खोल के 3 आर्क काटी. ये तीनों आर्क आपने इक्वल रेडियाई की काटी है. ओके, नाउ विद द सेम रेडियस, आपको कंपास को चेंज नहीं करना है. जितना कंपास आपने यहाँ से आर्क काटी है विद द सेम रेडियस, टेक B as center, taking B as center and cut 2 arcs. फर्स्ट आर्क और फिर जो ये आर्क यहाँ पे कटी है यहाँ से आपने रख के सेकेंड आर्क काट दी. यहाँ पे 2 आर्क क्यों काटी, बिकॉज रेशो इज़ गिवन 3:2. तो आगे 3 है इसीलिए आगे वाले वर्टेक्स से आपने 3 आर्क काटी, 3 इक्वल आर्क काटी और सेम रेडियस से आपने कंपास पॉइंटर को बी पे रखा और 2 इक्वल आर्क्स आपने और काट दी. Label them as B1 and B2. Is that clear to you all? Now join A3 B2. We'll join A3 B2. Pencil must be sharp, 10th class. Join A3 B2. Then you will see that this line A3 B2 intersects AB at a point. Label this point as C. So in this way we have divided AB in the ratio 3:2. That means AC ratio CB is equal to 3:2. Okay, it is the first method. In this way we can divide line segment internally. Okay, now if you will measure AC and BC with scale, then you can check that whether it is divided in the ratio 3:2 or not. अब देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है 10th क्लास कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द सो एंड सो रेशो. आपने डिवाइड कर दिया. आफ्टर दैट दे कैन आस्क यू जस्टिफाई दिस कंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन आ सकता है कि जस्टिफाई कीजिए. अभी तक एग्जाम में कभी भी नहीं आया कि जस्टिफाई इट, बट इट इज़ गिवन इन योर NCERT बुक के गिव जस्टिफिकेशन दीजिए. सो आई एम टेलिंग यू हाउ कैन यू जस्टिफाई. 2 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ बाय एक्चुअल मेजरमेंट एंड सेकेंड बाय प्रूविंग ट्राइंगल्स सिमिलर. ओके, सो बाय मेजरमेंट आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ, अपने आप कर सकते हैं. आई विल टेल यू बाय प्रूविंग बोथ द ट्राइंगल्स सिमिलर. नाउ सी, कैन वी प्रूव ट्राइंगल ACA3 and BCB2 सिमिलर. हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं. इन ट्राइंगल ACA3 एंड ट्राइंगल CBB2. Now have a look at both the triangles. Can we say that angle A equals to angle B equals to 60 degree? बाय कंस्ट्रक्शन आपने कंस्ट्रक्ट किया इनको इक्वल. याद है दोनों को आपने 60 डिग्री एंगल बनाया था. देन एंगल ACA3 इज इक्वल टू एंगल एंगल BCB2 because these are forming vertically opposite angles. Angle ACA3 is equal to angle BCB2. They are forming vertically opposite angle. So both the triangle ACA3 is similar to triangle BCB2. प्लीज़ चेक नेम्स मस्ट बी प्रॉपर. अगर नाम प्रॉपर नहीं दिए देन मीन्स आप गलत कर रहे हैं. सो ट्राइंगल ACA3 is similar to triangle BCB2. Correct? By which rule they are similar? They are similar by angle similarity rule. Both the triangles are similar by angle similarity rule.
Now we know that if two triangles are similar, then corresponding sides are proportional. So AC upon BC is equal to CA3 upon CB2 is equal to AA3 upon BB2. Am I right in doing so? Both the triangles are similar, so sides are proportional by CPST. Now have a look. AC upon BC is equal to CA3 अपॉन CB2. बट देखिए आपको इन साइड्स के बारे में कोई मेजरमेंट नहीं पता, सो लीव इट. AA3 अपॉन BB2. नाउ प्लीज़ हैव अ लुक हेयर. AA3 हमने जो आर्क्स कट की थी, क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे थी? ये जो आर्क थी वो इक्वल डिस्टेंस थी, तो आपने 1 2 3 इस पूरे AA3 को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. वी हैव डिवाइडेड AA3 in 3 equal parts. So can we write AA3 as 3 upon BB2? We have divided BB2 in 2 equal parts. So we can write it as 2 because आपने जो ये आर्क कटी है सभी की सभी आर्क A1, A1 A2, A2 A3, क्या ये तीनों लेंथ्स इक्वल हैं? Because radii of arc was same. In the same way इन तीनों ही आर्क के इक्वल BB1 एंड B1 B2 भी है, बिकॉज सभी आर्क्स का रेडियस सेम था. सो इट इज़ इक्वल टू 3:2. इट मीन्स AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू 3/2. दैट मीन्स AC रेशो BC इज इक्वल टू 3:2. वी हैव डिवाइडेड AC एंड BC in the ratio 3:2. So it is justification. If it has been asked in exam, then you have to do in this manner only. दोनों triangles को आपने similar prove किया. After proving them similar by CPST हमने sides का ratio लिया और आपने वो जिसकी वैल्यू निकालनी है AC अपॉन BC, ये तो डिवाइड करना है आपको कि AC और BC किस रेशो में डिवाइड हुई, यही फाइंड करना है. वो आपको मिल गया इससे AA3 और BB2 से. ओके, अब अगर आप इसको एक्चुअल मेजरमेंट से करेंगे तो देखिए कैसे कर सकते हैं. इन 7th चैप्टर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैड स्टडीड दैट रेशो इज़ 3:2. कोई दिक्कत नहीं है. बट AC, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC? AC इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 + 2 5, 3/5 ऑफ AB. जो ये AC है ये पूरे AB का क्या प्रोपोर्शन है? ये क्या है? 3 अपॉन 5, 3 + 2 5, 3/5 होगा AB का. सो लेंथ ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू 3/5 ऑफ AB. लेट अस चेक इट. AC इज इक्वल टू 3/5 ऑफ AB. AB वॉज गिवन 8 सेंटीमीटर. नाउ सॉल्व इट. 8 3 ज़ा 24, 24 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20.8 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. अगर 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है या 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है या फिर 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट विल वर्क 10th क्लास. ठीक है ना. मीन्स अप्रॉक्सीमेशन में आना चाहिए. एग्जैक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो अप्रॉक्सीमेशन में तो होना ही चाहिए. इन द सेम वे इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट BC, तो BC इज इक्वल टू 2/5 ऑफ AB. 2 अपॉन 3 + 2 5 ऑफ AB. होल लेंथ AB का ये वाला पोर्शन BC कितना होगा? 2/5 होगा. सो 2/5 इंटू AB. AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. 8 2 ज़ा 16, 16 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15.2 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ BC मस्ट बी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. लेट अस चेक इट. If we will measure AC, then AC is approximately 4.9 centimeter. Are you able to see? And BC, ध्यान से देखिए, AC is approximately 4.9 centimeter. And let us measure BC now.
BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन में ही करेक्ट है। तो आपको मैंने बताया हाउ टू जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट एज वेल एज जस्टिफिकेशन, आपको मैंने पूरा बता दिया। ठीक है ना, किस तरीके से एक्चुअल मेजरमेंट से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके से जस्टिफिकेशन करना है ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स, विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी हैड स्टडीड फर्स्ट मेथड to divide the line segment internally. In our next class, we'll study its second method 10 class, how to divide line segment internally by second method, because that method is also very important. वो method भी आपको आना चाहिए। Okay, so I think hopefully समझ में आया होगा आपको। So after construction and justification, one important point which is left is steps of construction 10th class. आपको देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना तो मैंडेटरी है। ओके, ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स लाइक कंस्ट्रक्शन देन यू हैव टू राइट डाउन स्टेप्स, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स कंपल्सरी। ठीक है ना, वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा कि राइट स्टेप्स ऑल्सो, जैसे आपकी प्रीवियस क्लासेस में, आपकी प्राइमरी क्लासेस में लिखा हुआ आता था कि राइट स्टेप्स ऑल्सो। आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि इस तरीके से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है और स्टेप्स लिखने हैं, बोथ द थिंग्स आर मस्ट। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर जस्टिफिकेशन तो आपको जस्टिफिकेशन करनी है, अदरवाइज नो नीड टू डू दिस जस्टिफिकेशन। ओके, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू वो नहीं करना है जब तक कि डिमांड नहीं की गई क्वेश्चन में। सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई पैराग्राफ मत बनाने बैठ जाना, यू हैव टू राइट वट एवर यू हैव डन, जो आपने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट। आई हैव प्रोवाइडेड यू PDF टुडे, in that PDF steps are written, you have to copy from there only, but फिर भी आपको ध्यान रखना है क्या कैसे स्टेप्स लिखेंगे। आप स्टेप्स लिखेंगे जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, देन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वर्टेक्स A अप साइड एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वर्टेक्स B डाउन साइड। नाउ कट 3 equal arcs from vertex A1, A2, A3 and B1, B2 from vertex B। ठीक है, इस तरीके से स्टेप लिखें, जो जो आप करते जा रहे हो वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में कर देना है, ये नहीं कि आप काफ़ी बड़ा कर दें। फिर एट लास्ट यू विल राइट जॉइन A3 B2 विच विल इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C विच डिवाइड्स आवर लाइन सेगमेंट AB in the ratio 3:2। Okay, in this way you have to write down steps also, which I have already provided you in PDF, but please ध्यान रखिएगा 10 क्लास किस तरीके से आपको steps लिखने हैं। Okay, so today I have told you how to divide a line segment by first method. In our next class we'll study by second method. Thank you.